उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास काम नहीं है। तो मैंने पूछा वन यात्रा क्या है? अगर कोई उनको 500 रुपया नहीं देता है तो उसको गोली मार देते हैं। तो आप हमारे बच्चों को एजुकेशन क्यों नहीं देते? वन टीचर वन स्कूल। उनको पता भी नहीं है कि वो भारत के नागरिक है। दे इवन डोंट नो। लेडी ने कहा कि हमारे घर में एक साड़ी है, तो एक जन पहन के आ सकता, दूसरी नहीं आ सकती। दिस लेवल तक गरीबी थी। इट शुड बिकम ए जन अभियान, माने पीपुल्स मूवमेंट। एकल शुड बिकम ए पीपुल्स मूवमेंट। 50 lakh people are living in that, not 1 lakh. Don't have a feel, you see. उनको कोई फीलिंग्स नहीं है, उनको पता नहीं है कि जीवन क्या है। इतनी जगह है कि 3 लोग रात का काम करते हैं, so that 3 people can live in human condition. पिताजी है, he has given me this, whatever I am there today, it is because of my father. मैं बोलता आप लोगों से एनर्जी मिलती है, you are my source of energy. Hi guys, I'm Ishita. And I'm Kanishka. And welcome to Drop the Filter. Today with us we have Mr. Ramesh Maheshwari, President of Friends of Tribal Society. Hi sir. Thank you. Hi. How are you feeling today? Well, good. I came to Bangalore and had a good day with the training with the people. Without Ekal, before आपने Ekal और Friends of Tribal Society join की थी, आप कौन थे? Born in 1956, Jamshedpur, steel की नगरी, Tata. Correct. I was born there in 1956. Stayed there till my college, did my graduation from there, and then I came to Calcutta. I was born in a business class family, having a small business over there. And after coming to Calcutta, I did my chartered accountancy, then company secretary, and then remained, opted for a corporate job there. Wow. So for how long did you work in your corporate job? It was, in fact, when I came from Jamshedpur, I gave a commitment to my father. He said that you are going to Calcutta for higher studies, but you should come back in our business. So when I passed CA, I went back to my Jamshedpur and I asked my father, what should I do? तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास काम नहीं है, तुम अपना कोई कॉर्पोरेट में जॉब करो, दैट विल बी बेटर। तो मैं कलकत्ता आया पास करने के बाद में, एंड देन आई जॉइंड ए स्टील ग्रुप, इस्पात ग्रुप, एंड देयर आई रिमेन्ड। देयर वाज ए जर्मन कंपनी टेकन ओवर बाय देम, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम देयर एज ए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, एंड देन आई रिमेन्ड देयर एंड आई रीच टू द पोजीशन ऑफ president in that company in 14 years time. Wow. So that was one of the thing I could achieve, and I was again one of the youngest president in the group, which was one of the fastest growing group in the country, and I had a great opportunity to work in the steel. I mean that sounds really inspiring क्योंकि अभी बहुत लोग I don't think work hard as much as people used to back then. Right now we all focus on smart work than hard work. Also, I think you started at a very young age and you became the president under 14 years. I think which is a big milestone because I've never become a So president. almost that time when I became president, that was around, I was 37 years old. It's very young Yeah. to Wow. be a president, and so you Yeah. started also very early. But my whenever I started studies, we were, you know, in those days it was called Bihar. Now it is Jharkhand, where I was born. So the medium was Hindi. And when we decided that I must go for higher studies, so in those days I wrote my exams in English. Wherever the medium of education was, all teachers were Hindi teachers. Every subject was in Hindi, but we got it, and by God's grace, I passed with the first division. Wow. I got highest marks in business organization, which was a writing subject. That's really Really, inspiring yeah. for a lot of people. How आपको एकल का आइडिया कहाँ से आया और ऐसा कोई इंस्पिरेशन आपकी Well, my father was always a believer. मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, बेटा अगर जीवन में कुछ करना है तो अपने पास अगर सामर्थ्य है तो दूसरे लोगों की मदद करो। दैट वाज द पॉइंट मेरे पिताजी हमें हमेशा बोलते थे। और बाई चांस
आई केम अक्रॉस इन दोज डेज, मैं आरएसएस के संपर्क में भी आया और वहाँ पर मैंने कुछ साल तक एक शाखा में भी ज्वाइन किया। तो वहाँ से आई गॉट दिस फीलिंग दैट आई मस्ट डू समथिंग फॉर द कंट्री, नॉट ए सोशल वर्क बट कंट्री के लिए कुछ करना है। तो फिर जब मैं when I was busy in my days, that was a very tiring job, continuous traveling in and out of the country. Then in the cities also, I used to visit steel plants, so I hardly had any time in those days. But one fine day I decided when I became president and director of that company, I must leave that company. Then my owners, promoters were got a shock of their life that why I am leaving a job, such a cozy job. They were paying me handsomely. There was no issues. They wanted to give me more privileges, Correct. more opportunity in India and abroad. So finally, I told them that I want to do some business. Even they proposed me that why don't you set up your own factory and then you can look after both the businesses. Yeah. So I said no, nothing doing, no my fate into places, Correct. because otherwise I fall down somewhere. And my aim was that I must be part of, my business should be a part of the family, because I had my 3 brothers with me. So I wanted that they become a part of the whole thing. Otherwise I will grow and they will remain there where they are. Absolutely. तो इसलिए फिर मैंने सोचा, तो फिर मैं I came here, after leaving I did lot of consultancies in financial sector, in technical sectors to Tata Group, as well as Heavy Engineering, which was a government company. So we did lot of consultancy job. And in those days, when I was getting some free time, I just by chance came across Friends of Tribal Society. Somebody came to my house. He said, हम लोग एक स्कूल चलाते हैं, तो why don't you donate something? I said, what kind of talk you are doing? कौन स्कूल गांव में चलाता है, ट्राइबल एरियाज में चलाता है, it is all humbug. So I refused. But later on, that person was persuading. Now he is my guru in this sector, where I am today. So फिर उन्होंने pursue किया मुझे और एक स्कूल का चेक ले गए. And in those days, it was around 8,000 rupees a school we were running. Then after that time I was working very closely with Lions Club in Calcutta, one of the clubs. And I was going to it was decided in the team that I should become the president of that club. And that was again very young age, around 46, 47. They offered me. So then this fellow, my guru, Ramanandji Rastogi, he is also one of the leading chartered accountants in Calcutta and a great social worker. He told me that चलो एक वन यात्रा में चलते हैं. बोले वन यात्रा क्या होता है? Correct. तो मैंने पूछा वन यात्रा क्या है? बोला नहीं, वहाँ चलो, ट्राइबल स्कूल देख के आते हैं, आपको अच्छा लगेगा. तो देन मैं और मेरी पत्नी उर्मिला, हम लोग दोनों बाई ट्रेन झारखंड के गांव में गए. और उस गांव में जब हमने एक दिन बिताया, डिफरेंट 2-3 स्कूलों देखी, वहाँ के बच्चों की कंडीशन देखी, वहाँ के लोगों की कंडीशन देखी. इनफैक्ट इन वन ऑफ द विलेजेस व्हेन आई वेंट, तो मेरे भांजे ने मुझे बताया था कि जब बॉक्साइट की ट्रक्स निकलती है, अगर कोई उनको 500 रुपया नहीं देता है तो उसको गोली मार देते हैं. Oh. That was the kind of scene in Jharkhand, in those Naxal areas. So when I went to a village, I asked a very old tribal fellow कि why you do this? आप लोग ये ऐसा काम क्यों करते हैं? तब उन्होंने कहा कि देखिए बाबू, पेट का आग है और पेट का आग के लिए कुछ भी कर सकता है. हमारे पास पैसा नहीं होता, हमारा पेट नहीं भरता है, तो हम लोग ये काम करते हैं. Those points touched me. Then I said, okay, where I am? लायंस क्लब में मैं क्या कर रहा हूँ? वहाँ तो मैं खाली आई एम गोइंग देयर, वहाँ इंटरटेनमेंट के लिए जाता हूँ, नेटवर्किंग के लिए जाता. आई डोंट नीड नेटवर्किंग, आई डोंट नीड इंटरटेनमेंट, रेदर आई डू सम सॉलिड वर्क फॉर द सोसाइटी. हम देश के लिए कुछ काम करो. और ये ऑर्गेनाइजेशन देश के लिए, देयर स्लोगन वाज कि हमारे ट्राइबल जो हमारे परिवार हैं उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़े. दैट वाज द बेसिक थीम, सो दैट दे बिकम पार्ट ऑफ द होल कंट्री एंड देयर लाइफ, देयर इज अ चेंज इन देयर लाइफ. दैट वाज द आइडिया एंड दैट इज हाउ
this whole thing started. I came back to Calcutta next day morning and I resigned instantly. My mentors were unhappy that we are giving you this opportunity to become a president and you can go big places in Lions Club because of your work, whatever you are doing. I said, nothing doing. I don't want to remain in a club. I want to serve the society. And then I immediately became a member. And then from there, my Ekal journey started. I think it's really inspiring because when I was in school, I was in a boarding school, so I was a part of a club called as a service project, and I was the head of it. So I used to travel to different villages in India and build washrooms for girls. So I have personally built a washroom for women, like girls' school in Pilani, Rajasthan. Right. I love to do such stuff because I feel we are really privileged, and I think if Yeah. we give just a little back to the people who are not, I think it will really help because a lot of, I think, dua milti hai, and also like a lot of respect, but apart from just like owning up for this country. Yeah. So yeah. Yeah, I think मतलब when you actually see these things happen in front of your eyes, जैसे आपने बोला था आप जब गए थे वन यात्रा में और देखे थे, तब आपको लगा कि हम लोग क्या ही कर रहे हैं। मतलब लाइफ में जब आप ऐसी चीज़ देखते हैं, नॉर्मल डेज़ पे हम लोग बैठ के सोच सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसी है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हम लोग को आज बर्गर खाने नहीं मिला, पिज़्ज़ा खाने नहीं मिला, बट दुनिया में लोग हैं जिसके पास खाना खाने को ही नहीं है। तो आई थिंक हेल्पिंग पीपल एजुकेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप बिकॉज़ आप डायरेक्टली उनको पैसा भी नहीं दे रहे हो। आप उनको उतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हो कि वो फ्यूचर में खुद के लिए कुछ कर सके। In fact, the whole thing came up. Why Ekal? करेक्ट। Ekal, how it started again? Again, somebody, industrial family went to one of the villages in Jharkhand. Then when they were talking to them, they said, बाबू आप हम लोग को खाना देते हैं, पैसा देते हैं, कपड़ा देते हैं, ये हम लोग के लिए थोड़ी देर के लिए, कुछ समय तक काम आता है, बट इट इज़ नॉट गिविंग अस सम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन. तो आप हमारे बच्चों को एजुकेशन क्यों नहीं देते? दैट इज़ हाउ एकल विद्यालय स्टार्टेड. वन टीचर वन स्कूल. उसी गांव की एक महिला या पुरुष एक टीचर होता है और उसके बाद में उसी गांव के बच्चे होते हैं. वो अपने किसी, और हमारा कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, किसी गांव के विलेज में पेड़ के नीचे, किसी कम्युनिटी सेंटर में, किसी मंदिर के बाहर में, या टीचर के अपने घर में, या जो सरपंच है उसके घर के बाहर में हम बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं. क्लास 1 to 3, 6 years to 14 years. In fact, I will share another experience. I went with another one yatra with my daughter many years later, maybe 5-7 years later. So she went to a village. She was studying in St. Xavier's College in Calcutta. So she said that, Papa, I want to see some villages. तो मैं चलो भी यात्रा चलते हैं. एक गांव में हम लोग जब गए तो उसने गांव के कई घरों में गई. वो मैंने एक एक घर में जाके उसने उनके कमरे देखे, वो कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनके घर में क्या स्थिति है. फिर वहाँ से बाहर निकली तो जिस घर में हम लोग के लिए खाना बन रहा था, हम लोग जब वन यात्रा में जाते हैं तो वहीं की कोई महिला को बोल देते हैं कि सामान ले आओ, पैसे हम देते हैं कि खाना हमारा तुम बनाओ. तो जो घर की महिला थी जो खाना बना रही थी, उसको जब उसने देखा, बोला, पापा इसका चेहरा में चमक देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि भगवान इनके घर में आ गए, हम लोग आए हैं. तो उसको फील हो रहा है. उसके बाद में नेक्स्ट टाइम सी टोल्ड मी कि जिन बच्चों से मैं मिली उनके घर में तो कुछ भी नहीं है, और हम लोग आपको इतना परेशान करते हैं कि हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए. माई डॉटर हैज़ ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ ए अर्ज टू डू serve the society, help the people whenever this gets a chance. So those were the really moving points he told me. So as the time grew, I got more and more involved in the systems working. I am a systems man and I tried to do a lot of system improvement in the organization so that the transparency is at the same in the place. आप बोले कि ये बहुत सारे स्मॉल गाँव में स्कूल्स चलते हैं. सो हाउ डू यू मेक श्योर दीज वर्क? लाइक व्हाट इज द चेन फॉर इट टू वर्क स्मूथली कि आप यहाँ पे हो और पूरे इंडिया में ये स्मूथली चल रहा है? या जैसे वन बंधु परिषद 45,000 स्कूलें चला रहा प्लस पूरे देश में, और पूरा एकल अभियान
उसमें करीब 90,000 प्लस स्कूलें चल रही है। इसमें हमारी 2 ऑर्गेनाइजेशन और भी है। इसका बड़ा सिंपल सिस्टम है। वी हैव ए वेरी fixed hierarchy. There are 2 types of organization. One is the नगर संगठन, we call them, कि जो चैप्टर्स है बड़े सिटीज़ में लोग हैं, उनका काम है to collect the donations from the people and then make the payment to the schools. Another side is the field, and in the field there are starting from the village, there is a chain, village, then 30 schools cluster, then on the top of that there is a district level, we call it Anchal, then we have a kind of a state, there we have a states, we call it Sambhag, then we have zone. In India today we are divided in 10 zones. Correct. So that zone is like we call it Prabhag. So everywhere there are Sevabrati Karyakartas. Sevabrati means they are full timers, but they want to serve the society, but at the same time in their family they don't have much money. So they work for a limited money, but 24/7, 365 days they are working on the field. So parallelly we create this kind of people, we bring them in the system, and at the same time as the chapters are there, we have a Gram Samiti. So the Gram Samiti makes a survey. If we have to create a 30 schools cluster, the Gram Samiti finds out hundreds of schools, and our criteria is very clear that the school should be in a tribal area, it should not be near the city, it should be deep interior where the schools are not very nearby. In those days, 1989. Today, after Sarv Shiksha Abhiyan, every kid is going to some government school. But our USP is that इन बच्चों को जब वहाँ पे वो जाते हैं तो उनको मिड डे मील या ड्रेस मिलता है। पढ़ाई अच्छे से नहीं होती। आज भी गवर्नमेंट स्कूलें जो गाँव में है उनमें अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनको हम सपोर्ट एजुकेशन देते हैं, चाहे वो लैंग्वेज है, वह कोई जनरल साइंस है, उसके बाद में अरिथमेटिक है, इन तीनों चीज़ में हम उनको तैयार करते हैं। बट वी डोंट स्टॉप इट देयर। आवर स्कूल स्टार्ट्स विथ हाउ टू गिव दम संस्कार, हाउ टू लिव इन ए फैमिली, अपने माता पिता को प्रणाम करना, अपने हेल्थ अवेयरनेस को ध्यान में रखना, ये भी हम क्लास में सिखाते हैं बच्चों को। मोरल वैल्यूज़, हाउ टू इनकलकेट मोरल वैल्यूज़, वो भी सिखाते हैं। उसके बाद में हम उनको पेंटिंग, डांसिंग, आर्ट, क्राफ्ट, ये भी सिखाते हैं। तो हमारे जो बच्चे एकल विद्यालय से जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, वी डू इट बियॉन्ड स्कूल आवर्स, आइदर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग. Acha, so these students also study in normal schools, like Yes, government yes, schools. they are part of, because today there is a mandate by the government that every kid has to be registered in the government. If a teacher is appointed, he is first told that every kid should be a part of the government school. So they go there. So that facilities are there. Also, मेरे को एक पॉइंट था, आपने बोला कि 1 टीचर पर स्कूल, तो आप ये टीचर्स कैसे अपॉइंट करते हो और कितने स्टूडेंट्स होते हैं एक टीचर के पास? 20 से 25 बच्चे, दोनों माने बॉयज़ एंड गर्ल्स। हम एक टीचर का हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि सी हैज़ टू बी सी और ही, बट मोस्टली 70-80% आर लेडीज़, गर्ल्स, दे आर द टीचर्स। तो हम उस गांव में सेलेक्ट करते हैं कि कौन ऐसी महिला है जो क्लास 10-12 तक पढ़ी हुई है और उसको नेक है कि कुछ सेवा कर सके, बिकॉज वी पे देम वेरी लिटिल मीगर अमाउंट विच वी कॉल्ड ऑनरेरियम और मानधन। हम 1500 रुपया महीना देते हैं उनको। तो देन वी फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ गर्ल्स कि वो उस वहाँ रहती है, वो गांव में ही, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आती हैं। 3 घंटा हमारा क्लासेज है, 3 घंटे के लिए करती है। उसके अलावा दे आर डूइंग लॉट ऑफ अदर वर्क, बिकॉज वी आर ए पंचमुखी शिक्षा, माने हम शिक्षा ही नहीं देते, उसके बाद संस्कार भी है। संस्कार के माध्यम से हम अपने देश के बारे में बताते हैं, संस्कृति के बारे में बताते हैं, हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में, देश के लाइक विवेकानंद जी, शिवाजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में उनको हम लोग बताते हैं। देशभक्ति के गीत सिखाते हैं उनको, ये सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं। उसके अलावा गांव स्वावलंबी कैसे हो, गांव का भी विकास कैसे हो, तो वहाँ के लोगों को स्वावलंबन में हम लोग जैसे पोषण वाटिका बना दिया कि फ्रूट्स के ट्रीज लगा दिए, या उनका कोई काम ऐसा उसमें मदद कर दी, तो जिससे उनकी भी कुछ इनकम हो। फिर स्वास्थ्य की बात आती है तो हेल्थ अवेयरनेस, आज मेडिकल कितनी कॉस्टली हो गई है,
तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो लोग बीमार ना हो, तो उसके लिए यू हैव टू हैव प्रिवेंटिव अवेयरनेस प्रोग्राम। तो जैसे आज घर से जो पानी निकलता है गांव में, अपने कई बार गांव में जाते हैं, हम देखते हैं कि चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ है, पूरे रास्ते में हम जाते हैं तो पूरा माने मच्छर हो गए उसमें, और मच्छरों से फिर कुछ ना कुछ बीमारियां पैदा होती है। तो हमने उनके यहाँ सोख्ता गड्ढा बनवा दिया कि जो घर से पानी निकल रहा उस सोख्ता गड्ढा में जाएगा। इससे अगेन देर आर टू अनदर बेनिफिट ऑल्सो। एक तो पानी कहीं जमा नहीं हुआ, सेकेंड है कि दैट वाटर गोज इनटू द सोख्ता गड्ढा, और उससे वाटर टेबल सब्सटेंशियली इम्प्रूव्स। अगर गांव के सभी घर का पानी उसके अंदर में गया तो पानी एवोपरेट नहीं होगा, मट्टी में नहीं जाएगा, और वो वाटर टेबल को इम्प्रूव करेगा। तो वाटर टेबल माने इनफैक्ट अगर हम लोग वो कैलकुलेशन करें, इन सोख्ता गड्ढा जो पूरे देश में है, करोड़ों लीटर वाटर हैज़ बीन सेव्ड थ्रू दिस प्रोसेस। तो ये काम भी हम वहाँ करते हैं। बच्चों को जो सिखाना वो तो सिखाते ही है। आई थिंक आप लोग पढ़ाई के अलावा भी ऐसी बहुत सी एक बेसिक लेवल ऑफ अवेयरनेस इन सब के बीच में यस, इन्वायरमेंट का अवेयरनेस है, हेल्थ का अवेयरनेस है हमारे देश। इनफैक्ट लॉट मैनी प्लेसेस उनको पता भी नहीं है कि वो भारत के नागरिक है। ओह, दे इवन डोंट नो, मतलब उन्होंने कभी जीवन में देखा ही नहीं है, शहर ही नहीं देखा है। मैंने इनफैक्ट 1989 में जब हमारे परिवार के लोग गए थे एकल में, जो हमारे सीनियर्स है, वो लोग जब अपने वाइफ के साथ गए, उस समय दे वर ऑल्सो यंग, मे बी टू 35 ईयर्स ओल्ड और 30 अराउंड। उनकी वाइफ भी गई। तो वहाँ लोग जब वो लोग पहुँचे तो उनको लगा कि कोई आसमान से अप्सरा लोग आ गई है। दैट वाज द फीलिंग, दे वर नेवर सीन। उनके पास क्या है, कहीं कहीं तो ऐसा था कि एक एक परिवार में कुछ, हमारी एक प्रेमा पांडुरंग जी कथाकार थी, सी वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट साउथ इंडियन लेडी, और कथाएं करती थी, भागवत कथा। उनको एक बार किसी गांव में हम लोग ले गए, हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो उनको ले गए। तो एक गांव में जब पहुंची तो उस गांव में एक घर से एक महिला निकल के आई, तो उनका सम्मान करने के लिए। तो उससे बातचीत होते होते बोली कि तुम्हारे घर में और कौन है? तो बोला कि मेरी एक बहन और है। तो तुम्हारी बहन बाहर क्यों नहीं आ रही है? तो उसने, गरीबी का ये लेवल था कि उस लेडी ने कहा कि हमारे घर में एक साड़ी है, तो एक जन पहन के आ सकता, दूसरी नहीं आ सकती। दिस लेवल तक गरीबी थी, आप सोचो। तो इट वाज माने रियली माने रोंगटे खड़े हो जाते जब इन बातों को हम सुनते हैं। तो एब्सोल्युटली। कि कितने उनके साथ में, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, उनको हम समरस बना दें, अच्छा बना दें। दैट वाज एकल से। एंड आई थिंक उनकी इतनी कठिनाइयाँ होने के बाद भी उनको इतना लगता नहीं है। या लाइक हम लोग के अगर एक चीज़ कम हो जाए तो वी रियली स्ट्रेस अबाउट इट कि ये नहीं है, ये नहीं है। बट आई थिंक फॉर देम इट इज़ वेरी, मतलब जो है दे आर वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी विथ इट। दे आर सेटिस्फाइड। दे आर वेरी सैटिस्फाइड। like I also like आपको ऐसा I don't think I should ask this question, मिंट उन जगह पे उन लोगों का ध्यान नहीं देती है। नहीं, गवर्नमेंट अपने तरीके से, यू सी, गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करती है, और सारे ही काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। वन थिंग इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर कि आप, गवर्नमेंट सारी चीज़ों को नहीं संभाल सकते। इतना बड़ा देश, इतनी समस्या, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, अगर गवर्नमेंट ही सब संभाल लेगी तो फिर बहुत मुश्किल काम है। दूसरा बात है कि उनके ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स, उनके सिस्टम्स में आना और सब करना, तो नेचुरली कि आउटसाइड हेल्प हैज़ टू बी देयर। और हम लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है, वी हैव ऑल्सो ए ड्यूटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी। हमको सोसाइटी ने इतना चीज़ दिया, हमको यहाँ तक पहुँचाया है, भगवान ने हमको इतना दिया है, तो वाई डोंट वी गिव समथिंग द सोसाइटी। वन थिंग इज, in our organization, another point, Ekal has a USP that we never take a grant from government for running of these schools. We have never taken. तो हम सब इंडिविजुअल डोनर्स या CSR डोनर्स या उनसे हम पैसे लेते और स्कूल चलाते हैं। आप कैसे इतने सारे डोनर्स को इकट्ठा करते हो, प्लस आप इसको सस्टेनेबल कैसे रखोगे ईयर? अब जैसे पूरे देश में जब वन बंधु परिषद 45,000 स्कूल चलती है, हमारा 20 स्टेट में काम है, 20 स्टेट में हमारे चैप्टर है। जैसे बेंगलोर में 2 चैप्टर्स है, बेंगलोर महिला और बेंगलोर, देयर आर 2 चैप्टर्स। तो इन चैप्टर में हमारे लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं,
उसके बाद उनको अपने काम के बारे में बताते हैं। उन लोग के मन में भी इच्छा होती है कि हम इस तरह का देश सेवा का काम करें, राष्ट्र निर्माण का काम करें, क्योंकि अल्टीमेटली उद्देश्य यही है कि भारत एक समृद्ध राष्ट्र हो और भारत विश्व गुरु बने। ये जो हमारा एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पहुंचाने के लिए अगर हम अकेले ही आगे बढ़ते रहे, हम खुद ही ग्रो होते रहे और उनको हमने पीछे छोड़ दिया, तो भारत कभी ग्रो नहीं हो सकता है। उनको भी हमारे समान धारा में आना होगा। तो ये चैप्टर्स को जब हम तैयार करते हैं तो वो लोग जुड़ते हैं, फिर वो लोग फंड रेजिंग करते हैं टाइम टू टाइम। अब एक स्कूल का, जैसे आज के दिन में हम लोग 30,000 रुपये में एक स्कूल चलाते हैं 25 बच्चों का, विच इज़ 2,500 रुपीज़ पर मंथ। और एक बच्चे के पीछे अगर हम देखें तो 20 बच्चे अगर है तो 1,500 रुपया एक बच्चे का हमारा, हम उनसे पैसे लेते हैं। 20 इस बच्चे इंटू 1,500 दैट इज 30,000। तो 1,500 रुपये में एक बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने अगर एवरी इंडिविजुअल थिंग्स इन द कंट्री, कि एक व्यक्ति को मैंने इंसान बना दिया, एक अच्छा इंसान बना दिया, अच्छा नागरिक बना दिया, हमारे देश में कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो वी वर्क विद दिस फिलोसफी। Actually, imagine if everyone starts donating 1,500, there will be no such issues. Like, Yes. just a thought. Yeah. No, in fact, as we are running 45,000 schools, next year we might be going for 50,000 or so. So we have taken a target ki in maybe not in a year or so, but we will reach to one person, one school. We don't want 100 schools, 200. We have donors who give 100, 200, 500 schools also. We have donors who give 1,500 rupees also. There are all types of donors. But our keen interest is कि it should become a जन अभियान, माने पीपल्स मूवमेंट। Correct. एकल शुड बिकम ए पीपल्स मूवमेंट। अगर उनका पार्टिसिपेशन होगा तो क्या होगा कि नीचे तक हमारा काम अच्छा होगा। हमारे यहाँ पूरे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, किसी भी कॉर्पोरेट स्केल, लाइक ए कॉर्पोरेट, वी हैव ऑल द डाटाज ऑन डिजिटल, वी आर वर्किंग ऑन digital apps for karyakartas and also acharyas. They fill up the attendance, they update the photos every day basis. We have the datas online for in our server for all the schools. Who is the teacher? What are the kids' name? Who are the acharyas? Who are the karyakartas who are working on them? We have absolutely a complete transparent system. We pay them all digitally, no cash payments, nowhere. So how do you add new people? Is it only through word of mouth, or how do you find people to join the society? You see, there are various ways. First is it is word of mouth. People, when somebody joins us, he comes in our contact because of our pursuance. Correct. हम उनसे जब मिलते हैं उनको बताते हैं अपने काम के बारे में कि we are not only running the school. It is not a running of a school. It is a creating, building of the nation. तो उनको जब बताते हैं तो वो किसी और को बताते हैं. He gives us the contact also कि उनसे भी आप मिल सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं. This is one of the ways we contact. Second is we do a lot of events and programs also in the cities, and there we invite people to attend, and by video film we show them the video, we give them the literature about our organization, our people, the lot of good speakers are there who speak up about our work. उनको शोकेस करते हैं. बच्चे को भी हम कई बार गांव से बुलाते हैं यहाँ पे. So we do all this kind of things for development, and then again we are opening like to earlier we have maybe 10 chapters, later on we went on adding and now we have 44 chapters. We have a target of 108 chapters all over the country. So this month we are opening 2 chapters. Like Ajmer is getting opened on 18th. Akola is opening on 15th. So the chapters are getting opened. So हम अपनी रीच बढ़ाते जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनको बताते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, फिर हमारे काम को मॉनिटर भी करते हैं, पैसे भी देते हैं. So is there some sort of recognition that ICCL and FTS has gotten in the last years which has helped you grow to another level? Recognition like in possibly from people who don't know you. मतलब कोई फॉर्म ऑफ मार्केटिंग नहीं बोलना चाहती, मतलब फॉर एग्जांपल से अगर न्यूज़ पे कोई आपको देखते हैं तो उसके थ्रू कोई ने रीच आउट किया है? बहुत बार रीच आउट किया. In one of the programs I went, I got a call immediately after the program. He knew me in general parlance. तो उसने जब मुझे सुना तो उनको दोनों पति पत्नी का फ़ोन आया
कि हम लोग अभी रिसेंट की बात है, तो इस तरह से लोगों के कांटेक्ट आते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको हम सपोर्ट करना चाहते हैं, तो दे बिकेम मेंबर्स, दे बिकम लाइक दैट. Okay. So there are nice people in the world who want Yeah, to yeah, do there are a matlab, lot of people. You see, our work is only on that basis. correct, exactly, which is why it's a little scary also कि आप कभी-कभी मतलब I'm sure there are very nice people, but उसका parallel side भी होता है where people don't want to give in to the society at all. In fact, in our case, it is ulta. Lot of people happily giving. हाँ, One nice. of my donors, I know him for, he is a kind of now today he is more of a friend. But when I came across, he is an engineer and a successful businessman in Calcutta. तो उनसे मैंने 5 स्कूल शुरुआत की. When somebody gave me a contact, I went and met him and told him that this is what we are doing. He gave 5 schools. Today he is giving 330 schools for last 3 years. That is 1 crore rupees. But whenever I call him, I tell him that आपसे मिलना है, और तो मैंने बोला कि चाय पीना आपके साथ में. तो ही अंडरस्टैंड. बोला चेक के लिए तुमको आने की ज़रूरत क्या है, चाय पीने के लिए आओ, चेक अपने आप जाएगा, पेमेंट अपने आप चला जाएगा. Those kind of people are also there. They want to give back Yeah. to the society. They appreciate our work, that yes, you are giving so much of time, then why we cannot contribute in that way. There are a lot of other communities that do a lot for the society. आपने कभी ऐसा सोचा है कोई के साथ कोलैबोरेट करने का? नहीं, you see, we have been always collaborating with the people. ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने नहीं किया. और इनफैक्ट वी हैव प्लान्स ऑल्सो कि आने वाले समय में जब हम काम को ब्रॉड बेस करेंगे और बेटर करना चाहेंगे, तो विल बी, बिकॉज टुडे एज आई टोल्ड यू दैट वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट NGO, एंड आई विल नॉट कॉल इट NGO, सेवा संस्था. हम लार्जेस्ट है जिसके पास 1 लाख विलेजेस के एड्रेस है, पिन कोड है हमारे पास 1 लाख विलेजेस. वी हैव 25 lakhs schools students always in our schools. 25 lakh kids. उनके परिवार के लोग, अगर मैं माता पिता 3-4 लोग ही उनके घर में हो, तो crores of में people are connected to us in the villages. Then apart from that, people like us who are volunteers, who want to serve the society. ऐसे कई हजारों में, we have 5,000 members, FTS, 5,000 donors. Again, another organizations, we have more people. So they also run into lakhs, so many samitis. So such a gigantic organization, and very well system oriented, transparent, everything is documented. So we work on like that. So that is how uh, now, as I told you that we have got these addresses. Lot of organizations are there, they have money, but they don't have address. They do not know the place. They do not know where to serve. So we are working with Rotary people already in Bangalore also. We have talked to the international governor who has become from Raviji. So he has donated a big amount in the Rotary. So we have series of meetings with him. They want to be a part of our work. Same thing, Lions Club also wants to do something. So we are now working on that model, because we have come to a stage where to serve and have a better impact in the villages, so that they get better facilities in terms of skill development, in terms of other areas of agriculture support and all kind of things. So these kind of organization will come in handy for having a sustained working in the villages. Someone wants to volunteer for this, how do they approach? And also We have a website. Through website you can connect. and You have a local chapters, you can talk to them and get yourself become a member of the society. The first stage is, we have a, fortunately, apart from chapter, in the chapter there is a Mahila Samiti, there is a Yuva team. So we have around 3,500 Mahila members, and they are from very good families, having a good background and want to serve the society. They have a zeal to serve. सेम वे हमारे यूथ है, अभी 17 चैप्टर्स में हमारी यूथ की टीम है, एंड दे आर बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हो लोग,
वो हमारे एकल मैराथन का काम करते हैं। जो एकल रन होता है उसमें यू मस्ट हैव heard about Ekal Run in Bangalore itself. You might have gone there. We have a Calcutta in Bangalore. Around 4,000 plus people ran in our Ekal Run marathon. In Calcutta, around 4,000. In Pune, 6,000 people. So people are coming this cause and they are also knowing and they are also wanting to support us in one way or other. ये जो volunteers होते हैं, they can go and teach the students also, no? You see, the challenge in this case is कि if you go to a village, our school timings are morning or evening. So, and they are far interior villages. So going there is a difficult, but we do in a different way. The youth goes there they meet the kids, उनके साथ interaction करते हैं, उनको कुछ सिखाते हैं कभी जब जाते हैं. That is the kind of thing they do with them and motivate them to have better. But one thing is, I'll tell you that the kids who have studied in Ekal Vidyalaya with a government school even, they are better placed than the other kids जो हमारी स्कूल में एकल विद्यालय में नहीं आते. They become kind of a confident guys Yeah. and they become all rounder, which other guys are not become because their parents are unable to give them that kind of service. Because वो पेरेंट्स ना तो पढ़े लिखे हैं और वो पैसा मजदूरी करके पैसे कमा रहे हैं, दिहाड़ी मिलती है उनको, तो उसके बेस पे उनके पास टाइम ही नहीं होता, वो इतने थके आ रहे होते हैं, उनके नॉलेज भी नहीं होती है, तो बच्चों को कोई मेंटरिंग नहीं होती है. एटलीस्ट वी बिकम ए मेंटर टू देम. I agree because I've also attended one of the Van Yatras और वहाँ पे I feel like kids come with so much aspiration to what they want to become. There was someone who said they want to become so big that they can help people in that village. That child's dream was not like, they were, of course, I'm not saying that that's not right, but like that was his dream, to help the village become a better place. So उत्ते मतलब छोटे बच्चों को तभी से they feel that need to help. They know कि और भी बड़ी दुनिया है बाहर. I will tell two instances. दो मैं बताना चाहूँगा तुम लोगों को कि मैं एक आसाम के एक विलेज में गया, तो वहाँ बच्चों को पूछा मैंने कि तुम लोग क्या बनना चाहते हो. ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है. व्हेनेवर वी गो देयर वी ट्राई टू, हम लोग उसको पता करते हैं बच्चों से, या और भी चीज़ें उससे पूछते हैं. तो जब मैंने उनसे पूछा तो मोस्ट ऑफ द किड्स सेड कि हम पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं. बोले भाई पुलिस ऑफिसर भाई क्यों? बोला नहीं, हम पुलिस ऑफिसर बन के रक्षा करेंगे अपना गांव का. ये भाव जो बनता है कि हम रक्षा करेंगे अपनी गांव का, दिस इज समथिंग माने उनके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं दे बिकम. दूसरा इंस्टांस है एवरेडी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एवरेडी बैटरी. इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट्स इन द कंट्री. तो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 10-15 ईयर्स बैक, नॉट रिसेंटली, उस गांव में कोई बिजली नहीं थी. वहाँ के बच्चों के साथ हम लोगों ने इंटरेक्शन किया, तो जो डायरेक्टर थे मिस्टर रॉय, उनको हमने कहा कि आप भी कुछ पूछिए. तो उन्होंने बातें की. फिर लास्ट में एक बच्चे को उठाया, बोला बताओ तो तुम क्या बनना चाहते हो जीवन में. बोला मैं सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूँ. जिस बच्चे ने कभी कोई पेपर नहीं देखा होगा, खाली कहीं सुना होगा, बट उसके मन में एस्पिरेशन, ये जो एस्पिरेशन है बच्चों में, अगर आप उनके अंदर में, हम लोग बोलते हैं कि हम ये उसमें ज्योति, ज्ञान की ज्योति जलाते हैं, जिससे कि बच्चा आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसको तैयार करते हैं. और दूसरी है कि अगर हम उसके मन में अभी से भावना, किसी भी बच्चे, हम लोग भी जब बच्चे थे, जो हमको बचपन में सिखाया गया उसी को हमने कैरी फॉरवर्ड किया, और दैट विल नेवर बी इरेज फ्रॉम माई मेमोरी और माई माइंड. हमारे दिमाग में रजिस्टर रहेगा. Correct. वैसे ही बच्चों को जब ये चीज़ हम बताते हैं, जो उनको सिखाते हैं, दे ऑल्सो बिकम लाइक दैट. A lot of these kids, बचपन से they actually don't have the dreams that they can, aspire for. Like they don't know the things that they want to become. And I think with all of you guys making them more stronger and strong in a way of education, they have started to believe now that they can do this. it. And their education, and the way you said that you also teach them moral values, and nowadays I think it's very important, because I think I have not studied a lot of moral values in my school that I'm studying right now, meeting people. Correct. Like, in general, like the way I study, I talk to her, I gain a few good things. I am talking to you, I'm gaining a lot of, like good vibes, empathy from you. So I think it's a very nice initiation that all of you guys Yeah. have.
आई थिंक एडिंग टू दैट, आपने जब बोला, आई थिंक ऑल ऑफ दीज जो बच्चे होते हैं, क्योंकि वो लोग कोई से सीख रहे हैं, वैल्यू सीख रहे हैं, उनका जो एस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर है, इट इज ऑल रिलेटेड टू गिविंग बैक. मतलब there's someone who wants to become a teacher because they want to give back to the students. There's someone who wants to become a police officer to protect. All their aspirations are related. Nobody is going to come and tell, which is not a bad thing, but nobody is going to come and tell कि मेरे को corporate, you know, corporate office में काम करनी है. कोई भी selfish चीजें नहीं बोलने वाला है. It is all about the community. कोई ने बोला डॉक्टर बना ताकि वो अपने parents का help कर सके. So these were the things I heard and it touched because nothing was selfish. They learn to live together and live for each other. I think they've done that from a very young age because बचपन से they all have learned that they have to do it like एक साथ. Community Community driven हो जाता है. And I think one more good thing about, one thing that I really am happy about villages is that devices से बच्चे बहुत दूर हो जाते हैं initial stage में, but at the same time आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे वो लोग थोड़ा सा, बिकॉज अभी AI कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड, दे शुड नो एटलीस्ट थोड़ा बहुत इन टर्म्स ऑफ द टेक फील्ड. तो आप उसके लिए कुछ कर रहे हो? हमने एक ई शिक्षा का मॉडल इज ऑन द वे, इट इज ऑन ट्रायल. और हो सकता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थ्रू टैबलेट्स विल दे मेक देम, वन ट्रायल इज थ्रू टैबलेट्स. हम 2-3 टैबलेट स्कूल में दे दिए, बच्चे उसको देख के कुछ डिफरेंट चीज़ें सीखें वीडियोस के माध्यम से या कुछ ड्राइंग्स के माध्यम से, इस तरह से उसमें सीख सकते हैं. दूसरा मॉडल और भी है, फिक्स मॉडल. आजकल चूँकि सैटेलाइट वगैरह जब आ जाएगा तो हम किसी जगह में, छोटी जगह लेके एक स्मार्ट टीवी लगा दिया हमने और उसमें भी हम कंटेंट उनको दे सकते हैं. तो इसके ऊपर मैंने वी आर देयर फॉर 37 ईयर्स यू सी, एंड नेचुरल परिवर्तन तो ज़रूरी है, चेंज इज मस्ट. वन वे इज़ दैट वी वर वर्किंग ऑन विलेजेस ओनली. लेकिन बाद में हम लोग को लगा कि हमने जब व्हेन वी स्टार्टेड असेसिंग आवर वर्क कि हम क्या कर रहे हैं और आगे हमको क्या करना है, इन फ्यूचर व्हाट शुड वी डू. तो फिर हमने सेकंड एजेंडा देखा. देयर वी फाउंड आउट कि वी मस्ट कम टू सिटीज़ ऑल्सो. FTS को सिटी में भी काम करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? वी फाउंड 2 थिंग्स. वन इज बस्ती, स्लम्स. एब्सोल्युटली. आप एक स्लम में जाओ, कलकत्ता बम्बई में, अच्छा कैन यू इमेजिन कलकत्ता जैसे शहर में कितनी बस्तियां होंगी, कितने लोग रहते होंगे? गेस ए फिगर. Oh God. More than 1 lakh? More than 1 lakh. In Calcutta and Howrah, where your बुआ lives, वहाँ पर उन दोनों सिटीज़ को, जो ट्विन सिटी है कलकत्ता में, वहाँ पे 1100 बस्तियाँ, स्लम्स, 1100. 50 lakh people are living in that, not 1 lakh. 50 lakhs? Yes. That's a lot for one state. It is one, not one state, it is one city. Oh my God. Again, let us come to Bombay. Bombay will have I think it's a larger number. Dharavi There is are only very more big. than 1,000-1,500 bastis, and again more than 50 to 70 lakhs people are living. And don't you think what kind of inhuman कभी बस्ती में गए हो आप लोग? filmed one of my college documentaries in a Bangalore slum. I went alone. I went for Ekal for that. Yeah, so I went one and I think I've cried with the people. I shot Yeah. a documentary, like वो कैसे रहते हैं, वो क्या करते हैं. But the parents were crying, but the children were just running around me. They were Because they don't have a feel, you see. उनको कोई feelings नहीं है, उनको पता नहीं है कि जीवन क्या है. Correct. उनको, जिसको कोई पता नहीं होता है, जैसे एक जानवर है, वो कहीं भी घूम रहा है, कुछ भी खा रहा है, उसको कोई पता नहीं रहता, बिकॉज तो बच्चे वैसे ही होते हैं. from 2 days they were surviving on 0 water. I don't. तो अब वो कैसे रहते हैं एक छोटी सी कोठरी में, 5 लोग, 6 लोग. इनफैक्ट समवेयर पीपुल डू 6 लोग रह रहे हैं तो 3 लोग दिन में रहते हैं, 3 लोग, इतनी जगह है कि 3 लोग रात का काम करते हैं, सो दैट 3 पीपल कैन लिव इन ह्यूमन कंडीशन. उनके ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है उनके जीवन में. पर उनको देखने से बहुत यू फील. एंड ये वो बच्चे जो ये जो फैमिलीज है, ये दोनों देखे हुए हैं क्योंकि ये सिटीज में रहते, दे नो कि बेटर लाइफ एग्जिस्ट करती तो है. हमने वहाँ पे चुना कि वहाँ 3 रिक्वायरमेंट है विच वी हैव असेस्ड. पहली रिक्वायरमेंट हमारी है
कि बच्चों छोटे बच्चे हैं वो स्कूल तो जाते हैं, मैंने किसी न किसी गवर्नमेंट स्कूल पास में फीस नहीं लगती है, फ्री में एजुकेशन हो रही है, वहाँ चले जाते हैं। माँ बाप काम पे चले जाते हैं, कोई कहीं मजदूरी कर रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं जब वो पढ़ने जाते हैं तो स्कूल में इनको तो कोई बताने वाला नहीं है कि होमवर्क कैसे करें। टीचर ने कुछ होमवर्क दे दिया, दे डू नॉट डू। और आई विल शेयर द एक्सपीरियंस, आई वाज इन बॉम्बे couple of days back. So I met, we have started in work in 4 buses. We are going little slow because we have to develop a team and we want to do it a proper manner. तो जब उन जो वहाँ की महिलाएं को हम एक पिकअप करते हैं कि जो उस बस्ती में काम करेगी, तो उनसे मैंने पूछा कि तुम लोग कैसे कर रहे हो, बोले 4-5 महीने हो गए हमें। तो मैंने पूछा कि कितने बच्चे आते हैं, 15-20 बच्चे। तो कोई अपने घर में थोड़ी सी जगह होती है वहाँ पढ़ा लेती हैं, या कोई बाहर में बरामदा होता है वहाँ पढ़ाती है, या कोई ओपन। एक ने तो कहा कि मैं जगह ही नहीं मिल रही थी तो मैं ओपन फील्ड में पढ़ाती हूँ, बारिश में मेरे को दिक्कत होगी। लेकिन मैं पूछा कि आउटकम क्या 3 महीने का, यू टेल मी। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। बोला कि जो बच्चे स्कूल में आ रहे थे उनकी टीचर ऑलवेज वर अनहैप्पी, क्योंकि होमवर्क करके नहीं जाते थे बच्चे स्कूल में। तो जब होमवर्क नहीं करेंगे, आज हम लोग भी जब बचपन में होमवर्क नहीं करते थे तो हम लोग को भी पनिशमेंट मिलता था, वी ऑल्सो यूज टू गेट पनिशमेंट। तो वहाँ बच्चों को पनिशमेंट मिलता था। अब वो बच्चे, टीचर्स उनको अप्रिशिएट करने लगी कि तुम लोग होमवर्क करके आ रहे हो, दैट इज़ व्हाट द काइंड ऑफ थिंग। उनको संस्कार भी हम लोग दे रहे हैं। दूसरा काम हम वहाँ पे, दूसरा काम है कि वहाँ जो गांव में उन जगहों में रहते हैं बहुत बहुत एजेड लोग भी रहते हैं, तो बीमार हो जाते हैं। तो हाउ टू गेट देम फैसिलिटेटेड। वो महिला पूरे गांव वो वहाँ घूमती है कि किसी की तबीयत कैसी है, जब पता चला कि बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई हॉस्पिटल से कनेक्ट कर देती है। चार्जेस तो लगते नहीं है, वी जस्ट हैव टू डू द फैसिलिटेशन। उन लोगों की मदद से उसको हॉस्पिटलाइज करा देते हैं, जिससे कि वो वहाँ, ऐसे कुछ केसेज हुए कि जहाँ पे लोग बच गए, अदरवाइज उनको हार्ट अटैक होकर ख़त्म हो जाते। तीसरा एरिया जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, and that is the most challenging area, एंटी सोशल ब्रीडिंग एलिमेंट वहाँ तैयार होते हैं। कैसे तैयार होते हैं? एंटी सोशल ब्रीडिंग मतलब मतलब जो एंटी सोशल एलिमेंट जो वहाँ से, ये सब वहीं से निकलते हैं। किसी भी शहर में जो चारों तरफ आप गुंडागिर्दी देखते हो, बदमाशी देखते हो, वो कहाँ से तैयार होती है? दोज आर द फैक्ट्रीज। फैक्ट्री क्यों बनती है? आपको पैसे नहीं मिलते हैं, आपके पास काम नहीं है, आपने पढ़ भी लिया तो आप बेकार, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है। तो व्हाट हैपेंस? उन बच्चों को कोई ले जाने वाला नहीं है कि चल भैया तू पढ़ा है, तेरे को काम दिला देता हूँ, क्योंकि उसको कौन देगा रेफरेंस? वहाँ के बच्चों को अगर हम लोग, ऐसे कुछ जगह हमारे ऐसे आइडियोलॉजी के लोग काम कर रहे हैं, एक मेघना सेठी है अभी इंदौर में, सी इज़ डूइंग ए वंडरफुल वर्क। वो ऐसे बच्चों को उठाती है और उनको अपने यहाँ सेंटर बना के रखा, वहाँ पे वो बच्चे आते हैं, सुबह से शाम तक उनका कोर्स कराती है। 1 साल के अंदर उस बच्चे को तैयार करके कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का आदमी बना देती है। ये वो अभी मैं जब उनके सेंटर पे गया था, ये ह्यूज सेंटर, कम से कम 150-200 लोग, 2 बच्चे इस तरह के उनके यहाँ पर है। एक बच्चे को अभी 12 लाख का पैकेज हो गया। ही वॉज सो ब्रिलियंट पर एनम का। कैन यू इमेजिन? So these are the success stories, you see. ऐसे ही लोग तैयार होते हैं। तो यहाँ के बच्चों को अगर हम डेवलप करें, चाहे वो हमारे मेड के बच्चे हैं, ड्राइवर्स के बच्चे, उनको कौन पढ़ाएगा? उन बच्चों को जब पढ़ने के बाद में उनको नौकरी कौन दिलाएगा? अगर आप उनको ग्रूमिंग करते हो। मुझे लगा कि मेरे को इशिता के पास भेजना, इनकी ऑफिस है, इनके पास मैंने भेज दिया कि इशिता इसको थोड़ा काम सिखा दो। वो जाके वहाँ काम सीखता है, तो थोड़ा जब काम मैच्योर्ड हो जाता है तब किसी ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं कि भैया इनको रख लो, आपके काम आएगा, तो इसको तैयार करो। वो धीरे धीरे ऐसे बच्चे, तो ऐसे बच्चों को भी हम लोग चाहते हैं कि उनको, जो बस्ती में रहते हैं उन बच्चों को हम ग्रूम करें, चाहे किसी स्किल के द्वारा। वो पढ़े लिखे हैं तो उनको, जैसे अकाउंट्स है, टैली, हमने एक बच्चे को अभी रिसेंटली किया कि उस बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही थी, हमारे पास किसी मेड ने भेजा कि इस बच्चे को पढ़ाना है, इसको जॉब नहीं मिल रहा है। तो उससे मैंने पूछा तो बोला मैंने बीकॉम किया और मैं थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानता हूँ। तो फिर मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फ़ोन किया कि इसको देख लो थोड़ा कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो उसने उसको रखा अपने पास 3-4 महीना। बोला भैया, मेरे से छोटा था, तो बोला भैया मैं इसको रख लेता हूँ और इसको थोड़ा ट्रेन करता हूँ। तो उसने उसको 5,000 रुपया महीने देना शुरू किए।
6 महीने के बाद में उसको थोड़ा ट्रेन कर दिया तो 7,000 रुपये महीना कर दिया। फिर जब और ट्रेन हो गया अभी उसको 12,000 रुपये मिलने लग गए। माने दीज आर द स्लो प्रोसेसेस इन ए ईयर्स टाइम और 2 ईयर्स टाइम अगर हम उसको एम्प्लॉयबल करते हैं दैट विल बी ए वंडरफुल जॉब। और वो जब इस काम में आ जाता तो फिर इधर उधर जो दूसरे लोग उसको टेम्प्ट करके ले जाते हैं, कहीं पे भी बोले तुम ये गलत काम करो तुमको इतने पैसे मिलेंगे, और वो एक बार वो अगर उस दलदल में घुसा तो निकलना बहुत he will मुश्किल never है। come out because they will not allow him to come out. एब्सोल्युटली एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सिस्टम इज कि आप लोग खाली शुरुआत के पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यू आर एक्चुअली मेकिंग श्योर कि उनके जो लाइफ के एस्पिरेशंस या उनका जो ग्रोथ है वो होगा No, we are इवेंचुअली। putting the seed in there. Yeah. हम बीज रख रहे हैं धीरे धीरे। ग्रो डेफिनेटली होगा बिकॉज आई थिंक वही चीज मिसिंग होती है। कोई भी अगर आप कंपेयर करो मिडिल क्लास फैमिलीज और लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिलीज में वही होती है कि मॉरल वैल्यूज एक चीज होती है बट इवेंचुअली अगर घर पे पैसा ही नहीं है तो योर फैमिली विल ऑल्सो से गो डू वॉट एवर यू वॉन्ट एज लॉन्ग एज पैसा घर पे आ रहा है, क्योंकि घर चलाना इज इम्पॉर्टेंट। तो उससे निकलना इज वेरी डिफिकल्ट अगर कोई गलत रास्ते पे चले गए। जैसे मतलब एक छोटा सा स्टोरी है कि मैं और मेरे फ्रेंड्स जा रहे थे। अब रोड पे ऐसे बच्चे रहते हैं ना कभी कभी जो रोजेस या कुछ फोर्स करते हैं, तो मतलब मेरा एक रूल है कि मैं पैसा देना अवॉइड करती हूँ, मैं खाना देती हूँ। लाइक आई डोंट लाइक गिविंग मनी बिकॉज वो मनी कभी भी कोई भी चीज के लिए यूज हो सकता है बट फूड आई नो कि खाएंगे। सो माई फ्रेंड एंड आई डिसाइडेड दैट वील बाय हर फूड एंड वी बॉट हर फूड एंड वी ट्राई टू गिव हर, बट एज अ मतलब वो खाना नहीं लेना चाहती, उसको पैसा ही चाहिए। तो ऐसा देखो मैं पैसा तो बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ, कुछ भी हो जाए मैं फूड ही दूंगी। सो शी सेड मतलब वो मेरे को कुछ बोल के चली गई। बट फिर वही डिफरेंस होता है कि उस मतलब पता चलता है कि मॉरल्स नहीं ग्रो हो पा नहीं रहे। मोरल्स नहीं है, दे आर कंट्रोल्ड बाय सम। एग्जैक्टली देयर आर थिंग्स माने ऑन उनके टॉप। ऊपर कोई ना कोई ऐसा प्रेशर है कि तुम पैसा ही लोगे, तुम और कुछ नहीं लोगे। They don't earn, you know, they beat these children. एग्जैक्टली लाइक स्लमडॉग मिलियनेयर द मूवी। I saw Mardani 3 recently. So I saw like if you don't earn the even Slumdog, if you don't earn the money, they'll cut your hand, and it actually happens because we just see the children near the traffic. We Yeah. don't see the Backstory. There are people who are controlling them. हाँ many a times if you look at the kids, कभी कभी ऐसे बच्चे भी कई लोग होते हैं, वो बोलते हैं चलो तुम पढ़ाई करते हो, बोला नहीं करते हैं तो चलो बैठो गाड़ी पे, तुमको मैं पढ़ाता हूँ, तुमको खाना भी दूंगा, और नहीं जाएंगे। दे विल नॉट गो विथ यू या बिकॉज उनको कहीं ना, मैं बोला ना कि वो एक बार उस दलदल में चले गए तो दे विल नॉट बी अलाउड टू कम आउट। और एक बार जो उसके अंदर चला गया वो कभी भी नहीं निकल सकता, उसका जीवन फिर धीरे धीरे और खराब ही होगा। तो वहाँ अगर हम इनिशियली इस चीज़ को अगर रोक पाते हैं, अगर सोसाइटी में इट इज़ ह्यूज वर्क, it is एब्सोल्युटली। absolutely whatever I am talking, these are Herculean tasks. You have to have those kind of people who go in the society, माने in बस्तीज slums, do the work, और उनको आगे बढ़ाना कितना बड़ा प्रोसेस है। तो जब तक हमारी एक जन अभियान जो मैंने बोला पीपुल्स मूवमेंट जब तक नहीं होगा तब तक इनका सॉल्यूशंस नहीं होगा। मेरे पास आपके लिए एक फन रैपिड फायर ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी, आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। 1 word that would you would describe India. इंडिया को एक वर्ड में, इट्स ए ग्रेट कंट्री। Village life or city life? आई विल ऑलवेज लुक एट ए मिक्स्ड वन। Same. कोई लीडर है जिसको आप बहुत पसंद या एडमायर करते हो? मेरे लिए लीडर तो मेरे पिताजी है। He has given me this, whatever I am there today, it is because of my father. आई लव दैट। 1 value every child should learn. You see, these one value, content, satisfied lot. और ऐसा एक मैसेज आप इंडिया की यूथ को देना चाहोगे? मैं जब देखता हूँ इंडिया को, बरसों से देख रहा हूँ। आई हैव लिव्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माई लाइफ, स्टार्टिंग विथ ए वेरी स्मॉल ordinary family. From there I graduated myself, have a good education. तो मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि यू डू ए सिंसियर एंड हार्ड वर्क, देन ओनली यू विल अचीव योर गोल। अगर हम अपने काम के प्रति समर्पित है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे हमारा जॉब है, चाहे हमारा परिवार है, अगर उसके प्रति सिंसियर हैं हम, तो वी कैन विन एनी बैटल। आपने बोला कि आप मतलब आप भी बहुत टाइप ऑफ लाइफ अलग अलग जिए हुए हो।
So that one thing that changed, that one value that stayed from the start till today. मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ लोगों को कि आपका रूप बदल जाए, स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। हम जो शरीर है, हमारा रूप है, ये रूप बदल सकता है। आप एजिंग होंगे, आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, कल आपका रूप बदल जाएगा, बट स्वरूप जो है ये अंदर का, इट शुड नेवर चेंज। तो जो आपने कहा, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि मेरे साथ हमेशा ये रहा कि भगवान ने मुझे बहुत सामर्थ्य दी, और मेरे पास कोई आता है तो मैं उसकी कैसे मदद कर सकूं, ये मेरे पास आज से नहीं है, फ्रॉम द डे जब से मैंने अपना होश संभाला, तब इस चीज़ को उस दिन भी जिया था, आज भी जी रहा हूँ। आई फील लाइक आपने कोई ऐसा एक इंस्टेंट जो आप इतने सारे वन यात्रा और इतने सारे लोगों से मिलते हो, कोई एक चीज जिसने आपको एक दूसरा नजरिया दिखाया, जो आपने चेंज किया आपका थिंकिंग in terms of a learning or a change thought through someone that you met during the process of all of this? नहीं, आई विल टेल यू इंस्टेंस विच मैं जब क्लास 10 में पढ़ता था, तो माई फादर, मेरे पिताजी के एक मित्र थे, ही वॉज ए एस्ट्रोलॉजर। तो मैं एक दिन जब स्कूल से आ रहा था, तो दोनों बैठे थे, तो दोनों जब बैठे थे बातचीत कर रहे थे, तो उन एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने मेरे पिताजी को कहा कि रमेश ज़्यादा नहीं पढ़ेगा। ये बात मैंने सुनी, आई हर्ड दैट, एंड मैं अपने घर चला गया। उसके बाद में जब ये बात मैंने किसी को नहीं कही, इट रजिस्टर्ड हियर ओनली, या यहाँ पर रह गया। जब मैंने सीए जिस दिन पास की, एंड एज इट सो हैपेंड कि जिस दिन मैंने सीए का एग्ज़ाम का रिजल्ट देखा कलकत्ते में, वी यूज़ टू लिव इन जमशेदपुर, मेरे पेरेंट्स वहीं रहते थे। मैं जमशेदपुर पहुंचा 10 बजे के 11 बजे अपनी ट्रेन से, और जब दोनों मित्र एक ही जगह फिर बैठे थे, और उनको मैंने ये बात बताई कि जिस दिन आपने कहा था कि मैं पढ़ूंगा नहीं, एंड इट बिकेम, मेरा संकल्प बन गया कि मेरे को कुछ पढ़ना ही बनना है। जीवन में। तो ये इंस्टेंस मेरे लिए एक चेंज ओवर था। और दूसरा, इस तरह की बहुत इंस्टेंसेस कंटिन्यूसली जब लोगों से मैं मिलता हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से मिलता हूँ कि जब उनको मैं देखता हूँ, तो उनके सामने मेरा काम कुछ भी नहीं है। हमारे श्याम जी है जैसे, जो जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, जो वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तपस्या को जब देखता हूँ, तो हम लोग का तो कंट्रीब्यूशन इतना सा है। अगर उन्होंने इतना किया तो हमने इतना किया है। वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे। तो हमको लगता है कि अभी और बहुत कुछ करना है। लॉट मेनी थिंग्स हैव टू बी डन। आई एब्सोल्युटली एग्री। तो आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि आई डोंट बिलीव, बट मे बी दैट वाज माई डेस्टिनी, कि आप वो सुनो और उसको मैं ऐसा करो। सुनूं, एंड देन मेरी डेस्टिनी थी। आई बिलीव, एस्ट्रोलॉजी इज ए टॉर्च बियरर। आप अगर उसमें अंधविश्वास, किसी भी चीज पे अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली, वो तो यू 100% शुड नॉट हैव ए, जिसको बोलते हैं ब्लाइंड फेथ, नहीं होना चाहिए। आपको उसके ऊपर बैलेंसिंग होना चाहिए। जब आपको कुछ चीज का पता चलता है, तो उसके सेफगार्ड लीजिए। टॉर्च देख के हम गड्ढे को पार करते हैं कि गड्ढे में नहीं गिरे। एक बात पढ़ी थी कि भगवान ने आपकी डेस्टिनी पूरी लिखी हुई है, बट कुछ पेजेस खाली छोड़े ताकि आप खुद लिखो वो। तो मे बी वो आपने खुद ही लिखा है कि आपको वैसे करना था और आगे बढ़ना था। क्वेश्चन है, ड्रॉप द फिल्टर क्वेश्चन, कि ऐसा एक मिसकंसेप्शन आप लोगों का चेंज करना चाहोगे अबाउट द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया? मिसकंसेप्शन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। यू सी, ये ट्राइबल्स सीधे और सच्चे इंसान हैं, और इनको बहुत लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट किया पूरे देश में। अगर हम आज़ादी के पहले से बात करें, मैं खुद भी एक ट्राइबल एरिया में ही मेरा जन्म हुआ। हमारे घर से 20 किलोमीटर के अंदर में ट्राइबल्स थे। तो इन ट्राइबल्स को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया इन डिफरेंट लोकेशंस, आसाम में या झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। तो ये सीधे सच्चे इंसान हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब सीधा सच्चा इंसान होता है, तो कई बार इनका एक कलर चेंज कर दिया जाता है। जिन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उन गांव में रहने वालों के, उनका एक फेस वो अलग दिखाते हैं कि ये लोग ऐसे, ये लोग ऐसे हैं, जबकि दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल। माने उनके अंदर में बहुत अब स्वाभिमान है। मैं ये समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा स्वाभिमान, वो कम खा लेंगे, गम खा लेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे, बट आपसे भीख नहीं मांगेंगे।
आपने कभी किसी आदिवासी को भीख मांगते, वनवासी को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा. You just try to find out. Yeah, actually, they survive and live. Yes, they will live with whatever they are. कभी भी मैं तो अपने जीवन में कभी आदिवासियों को या वनवासियों को मैंने कभी भीख मांगते हुए नहीं देखा. करेक्ट. दूसरी कम्युनिटी के लोग भीख मांगते हैं, ये लोग कभी भी भीख नहीं मांगते. दैट इज देयर स्वाभिमान, वनवासी का स्वाभिमान है. एंड वी हम उसके एकल उनके स्वाभिमान को बचाने की चेष्टा कर रहा है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने की काम कर रहा है, उनकी लाइफ को बेटर करने का काम कर रहा है. दिस इज व्हाट एकल इज डूइंग, FT is doing. I think it's a very inspirating organization, and everything that we do towards the society will always come back to the society only. मतलब वो बहुत, जब आप देखते हो ना, when आप ऐसा कोई एक इंसान जो आप देखते हो कि आपके स्कूल से एकदम कुछ बन गया है, वो आपके लिए वो एक अचीवमेंट होती है. आपके अचीवमेंट और सेंस ऑफ अचीवमेंट्स चेंज हो जाते हैं विद टाइम, कि आप अगर इस बच्चे को पढ़ाए हो और वो कुछ बन गया है, as small as वो 10th पास कर लिया विद गुड मार्क्स और फ्लाइंग कलर्स, वो एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट देता है कि आपने सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा किया है. एंड आई थिंक वो आप लोग के लिए, मतलब आई रियली बिलीव दैट जो लोग सोसाइटी के लिए कर सकते हो, दे आर वेरी वेरी लकी टू हैव दैट माइंडसेट, बिकॉज हर इंसान नहीं कर सकता है. क्योंकि अगर हर इंसान कर सकता तो हम लोग को करना नहीं पड़ता अभी तक. मैं इसके लिए 3 बातें बताऊंगा. नंबर 1, हम लोग फॉर्चुनेट है, हम लोग भाग्यशाली है कि ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना. कितने लोगों को चुनता है? एग्जैक्टली, बहुत हजारों लोग हैं, बट मुझे ही क्यों चुना, मेरे से ये काम करो. तो मेरे ये है पहली चीज. दूसरी चीज है कि वट एवर आई एम टूडे, वट एवर आई एम टॉकिंग टू यू टूडे, वट एवर मेरा व्यक्तित्व जो आप लोग देख रहे हैं, ये कहाँ से आया? मेरे जॉब से नहीं आया. इट हैज़ कम फ्रॉम दिस वर्क व्हाट आई एम डूइंग. मेरे व्यक्तित्व में पूरा परिवर्तन, जैसे हम बोलते हैं ना कि उनके जीवन में परिवर्तन, मेरे में भी परिवर्तन आया. मैं अच्छा सोचने लगा, मैंने गलत काम बंद कर दिए. ये भी तो मेरी उपलब्धि है. दिस इज़ व्हाट आई अचीव. मेरे परिवार में कोई बच्चे वैसे नहीं निकले, मेरे परिवार के लोग भी सेवा का काम करना, बिकॉज दे आर लुकिंग एट मी. तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं पॉजिटिव साइड है. थर्ड पॉइंट, व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, जब आप ऐसा काम करते हो देश के लिए, समाज के लिए, तो आप योर किसी भी व्यापारी, किसी जॉब वाले को आप देखोगे, सुबह उनकी एनर्जी X होती है और रात में जब वो घर आता है उसकी एनर्जी X माइनस सो एंड सो, टायर्ड हो जाएगा और सब होगा. है तो होता है ना कि हम जब काम करके आते हैं तो अब भाई अभी कुछ नहीं करने का, बात सुनने का मन नहीं है, कोई कुछ बोल दिया तो चिड़चिड़े हो जाते हैं. बट in this case, I am telling you, I check my energy in the morning, 6 o'clock, 5 o'clock, 4 o'clock. Today I got up at 4 o'clock. I had the same energy, and in the night also I will have the same energy. Wow. The level has never gone down. It remains same. Wow. It is because of this work what we are doing. To keep the energy up. I know, but ये वाला जो पर्सपेक्टिव है मैंने पहली बार सुना है, which is crazy because I tell people कि आप इस काम को करो, आप देखो, आप इस तरह के कामों से जुड़ो. कोई भी काम हो सकता है, इट को नॉट नेसेसरली व्हाट वी आर डूइंग यू आर डूइंग, बट इफ यू डू समथिंग गुड फॉर द पीपल, यू डू सच काइंड ऑफ वर्क, इट विल बैलेंस योर एनर्जी. दूसरी, यू विल नॉट बी सिक. मुझे याद है कि मैं जब तक जॉब में था, बिफोर कमिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, हफ्ते में 1 बार 2 बार सर दर्द जरूर होता था. यहाँ आने के बाद पिछले 20 साल में मुझे 20 बार भी दर्द नहीं हुआ होगा. आई थिंक आप कभी भी छोटे भी शुरू कर सकते हैं. आई डोंट थिंक इतने a lot of people can't donate in terms of money, but in terms of time donate कर सकते हैं, in terms of being there for people. हम तो हमेशा ही कहते हैं तन मन धन. करेक्ट. आप किसी भी, और धन से ज़्यादा अगर धन देना जो है उसके रिजल्ट्स, और तन अगर आप देते हैं उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है. एब्सोल्युटली. धन तो दे दिया, मैंने कमा लिया, पैसे दे दिए, खत्म. तन जब हम देते हैं और मन जब देते हैं, तब वी बिकम ए पार्ट ऑफ द community, because पैसा देना is one thing, you are giving the money but you don't know what's happening there. yeah, only. well, it is happening. वो पैसा दे दिया, काम खत्म हो गया, but when you're actually physically there and you're seeing things happen,
tab you're giving it with your heart. And I think your connection also becomes stronger with the people, and I think you're more satisfied inside and outside of your body and your soul. Yeah. Whenever I meet people, they ask me कि भाई आप इतने एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? मैं बोलता आप लोगों से एनर्जी मिलती है. You are my source of energy. When I meet you people, जिससे भी मैं मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ. I am meeting you, I am getting energy. That is how this energy comes to me. मैं तो यही बोलूँगा कि सभी को हम जब इस जीवन में आए हैं तो हम लोगों को जहाँ पे भी हमको लगे कि देयर इज ए गैप इन somebody's life, in the smallest way if you can do something for them, that will be the ultimate result for you. I think like nothing is, you just do it. There is no meter saying small or big. Just do whatever you can. Yeah. To give in the society. I am happy that you share the same thinking. Absolutely. That is a great thing. I That think we you also should. come from similar kind of family thought process because her parents are doctors, so they are giving back in their own way to the society. And my grandfather has been in this for the longest time, matlab, since whenever I can remember. So I think we all come from that. And I Same think both field. of us individually are very giving. And I think That's good. That's good. And if at this age you start giving, you see, your mental frame slowly develops, and over a period of time, it becomes a part of your. Absolutely. change, like in both of us, how we were in college and now. I Yeah. think we are very mentally. Your mindset changes. It has, definitely has. I think I was also telling that I've been a part of organization where I had to go teach children, and looking at them makes me the most. I was the happiest when I was teaching. Every Sunday for 3-4 hours I used to teach, and the way those children look at you, you feel like you've achieved. You don't need anything else in your life because उनके लिए every small thing matters. Like अगर भूल से मैं कभी एक water bottle लेकर चली गई, so that's a big thing. आपको सिग्नल मिलेंगे, माने संकेत जिसको बोलते हैं. हाँ. जैसे मैंने अभी एक संकेत देखा. मैं अमेरिका गया. मैंने फर्स्ट टाइम आई वेंट टू अमेरिका मेनी टाइम्स, बट फॉर ए कॉन्फ्रेंस, एकल कॉन्फ्रेंस, आई वेंट टू अमेरिका दिस टाइम. आई वाज 24 डेज मैं अमेरिका में था. तो वहाँ पे मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी में गया. दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंडिकेशन कि आई वेंट टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी. वहाँ से जब मैं इंडिया आया, आई केम टू हैदराबाद, अपने चैप्टर की विजिट पे आया. जो नॉर्मल मेरा प्रवास कहीं ना कहीं रहता ही है, मैं पूरे देश में जाता आता रहता हूँ. वहाँ जो हमारे प्रेसिडेंट थे, वो मुझे एक आश्रम में, रामानुज आश्रम है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, फ्रॉम लिबर्टी आई केम टू इक्वलिटी, कि आप लिबरल होइए, आप इक्वल हो जाएंगे. Wow. That is the thing. There I got another message there, कि जो रामानुजाचार्य जी थे, जो एकल में हम जो काम कर रहे हैं, आई फाउंड ए सिमिलरिटी. 1000 साल पहले जो गुरु लोग थे, वो वेद मंत्र की शिक्षा जनरल आदमी को नहीं देते थे. जो भी इंसान ऐसे हैं उनको नहीं देंगे, कुछ प्रिविलेज पर्सन्स को ही दिया जाता था. उन्होंने वहाँ बैरियर को ब्रेक किया और उन्होंने जन साधारण को वो चीज़ दिलवाई. दैट वाज द मैसेज ऑफ, कि अभी रामानुजाचार्य को आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा. वहाँ से जब मैं नाउ लिबर्टी टू इक्वलिटी, देन आई वेंट टू एकता नगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू. व्हाट इज दैट स्टैचू? स्टैचू ऑफ यूनिटी. Oh wow. So the signals, see the liberty, come to equality and unity. You unite everything. तो मुझे लगा कि शायद ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना और वो सिग्नल दे रहा है कि आप अच्छे से काम करो देश के लिए. Yeah, I think, I mean, ये signs दिखते हैं, and it's just how you see the signs. Because बहुत लोग आपने signs देखे, but बहुत लोग वो खाली देख के चले जा सकते हैं. आपने focus की because आप देखना चाहते थे कि maybe some indication that you're doing something good for the I society. wrote about it, a small article on this only, कि how the signals come to you
for doing good work in the society. I think it's all very inspiring. I think people will really want to do something with their lives. Yeah, I think even people now, I think after hearing this, even I will start noticing more things around me. You never know when you get a signal for anything. Absolutely. And I think you become very mindful. आप जब बाहर इतना करते हो ना, तब घर आकर भी you don't come with stress. You are mindful about what people are doing around you. You want to take that extra effort to be more aware of what people are doing around you. So I think that's all. It all turns out to be great. And you find yourself also Absolutely. in the process, because what happens that अगर आप बाकी सामाजिक अपने खुद के कार्यों में लगे हुए परिवार को संभाल रहे हैं, उसी उधेड़-धुन में आप घूमते रहते हो. You are within that Same circle, correct. उसी इकोसिस्टम में रहते हो. But when you come out, recognize yourself. The right word can be little different. कि आपको अपने बारे में पता चलता है. मैं भी identify yourself. Who are you? What you have come to? हम इस संसार में किस लिए आए? मैं अभी पढ़ रहा था, गौर गोपाल दास का नाम आप लोगों ने सुना होगा. Have you heard? You have heard his podcast? ISKCON के. He is a wonderful writer, wonderful motivator. उनकी एक किताब मैं पढ़ रहा था, मैं नाम भूल गया. We have it all or something like that. उसमें उन्होंने लिखा, उसमें किताब में लिखा उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस कि आदमी जब तक अकेले नहीं रहेगा कुछ दिनों तक, अपने आप को आत्मसात नहीं करेगा, तब तक वो अपने बारे में नहीं जानता है. तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं बीमार हो गया और मेरा गला चोक हो गया. एंड आई रिमेन्ड confined within a room for maybe 2-3 months. And in those days I realized, मैं धीरे धीरे सोचने लगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए. तो मैं अपने आप को evolve myself. And from there my life changed. So that is how we should also try to find out ourselves. I think, and I feel like this is so crazy because even after, because हम लोग का generation ये सब सोचता है, you evolving yourself to such an extent that you were ready to find yourself and know that that's a concept. Because अभी हम लोग not just mindful with the society but also mindful with how we take care of ourselves. Like कि हम लोग को क्या चीज़ से पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ पे हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है, who we really are and what we really like. हर चीज़ भेड़ चाल में नहीं होती है. वो सब हम लोग अब सीख रहे हैं. बिकॉज आप स्कूल में रहते हो ना, कभी आपका ग्रुप कुछ कर रहा था, बोलते ठीक है चलो कर लेते हैं, ये कर रहे तो चलो ठीक है कर लेते हैं. वी आर इन्फ्लुएंस ना. हाँ. सबसे बड़ा बात है कि हमको पता नहीं है, हमको किसी ने बताया, मैं इन्फ्लुएंस होके उसमें आगे बढ़ गया. करेक्ट. तो द इन्फ्लुएंस हैज टू बी limited to a certain extent, not beyond. Absolutely. Otherwise you will sway, you will be tempted. Yeah, and I think to not be swayed away and tempted, you need to know yourself कि आप क्या चीज करना चाहते हो और क्या चीज नहीं करना चाहते हो. Yeah, I think That's a reminder to self-identify yourself. Yeah, always. that's true. I agree. Okay. I think that's it. Okay, thank you. So thank you so much for coming, and we'll see you next Friday. And it was an opportunity to me also to have the first podcast with you, Thank you two so much. young ladies who has been great, and I am happy that you are doing this kind of work. Thank you so much. It's our pleasure that you are here. Matlab, you've come from Kolkata, you had some work and you took time out to do this with us. It's really crazy. Thank you so much for coming. Thank you.